Hello class 10th students. Today I am going to solve acid, bases and salt chapter number 2 chemistry class 10th short answer type question which is on page number 67 and the total number of questions from 16 to 30. Let's talk about the question number 16 here. It has three parts. First one is what is an indicator? Name three common indicators. So what does the meaning of an indicator? So students, an indicator is a kind of a dye. What is this? It is a kind of a dye which changes its color when it put in acid or base. So that generally indicator changes its color in the acid or basic solutions. The three most common indicators are, we can give the examples here. So first one, if I talk about the most common indicator, first one is litmus. We got it from the lichen plant and it is a natural indicator. Other one is methyl orange. This is your synthetic indicator and generally we found it in the lab very easily. Along with that, litmus is also available in the lab very easily. And within that we have another indicator which is used so many times in the lab, phenolphthalein. Okay, this is also your synthetic indicators. So these are the most common three indicators. Let's talk about the B part. Name the acid-base indicator extracted from lichen. Lichen is a kind of a plant, and from lichen plant we extracted an indicator which is used to detect the acid of basic substances. This is litmus. Okay, this is litmus. Laterally, C part is what color does the turmeric paper turn when put in the alkaline solution? Turmeric generally it is yellowish in color and commonly found in the kitchen. हल्दी, when we put some alkaline solution here, आप ये घर पे भी कर सकते हो कि आप टर्मरिक पर थोड़ा सा सॉल्यूशन या डिटर्जेंट पाउडर डाल के देखेंगे तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा. तो वी कैन से कि इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है कोई भी अल्कलाइन सॉल्यूशन या जनरली बेस डालने पर. सो आंसर इज रेडिश ब्राउन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज एन olfactory indicators? Name two olfactory indicators which is affected of adding sodium hydroxide solution of these olfactory indicator. ये बोल रहा है कि olfactory indicators क्या है? तो बेटा वो indicators जो कि अपना odor change कर देते हैं. What does the meaning of odor? Odor का मतलब होता है अपना smell या फिर fragrance. किसके कांटेक्ट में आने पर? एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट पे आने पर अपना स्मेल या फ्रेगनेंस को ये चेंज कर देते, कंबाइंडली इसको ओडर बोलते हैं. तो इस तरह के इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. तो जो कलर चेंज करते हैं वो जनरली डाई होते हैं और उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. और एक अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ये अपना स्मेल चेंज कर देते हैं या बिल्कुल स्मेल इनका चला जाता है, ओडर बिल्कुल चला जाता है. तो इस तरह के इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. नाउ दे आर आस्किंग नेम टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो हम यहाँ पे ऑनियन एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, मतलब कि ऑनियन का जूस, क्योंकि इसका एक डिस्टिंग्विश स्मेल होता है. दूसरा है आपका वनीला एक्सट्रैक्ट, इसका भी अपना एक डिस्टिंग्विश स्मेल होता है, odor होता है. तो नेम टू olfactory indicators. So first one is onion extract, other one is the vanilla extract. What is the effect of adding sodium hydroxide? अगर हम ऑनियन या वनीला में एक्सट्रैक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या असर आएगा? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि वाटर डिसॉल्व बेस है, तो हम इसको हम एल्कली भी बोल सकते हैं. तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑनियन एक्सट्रैक्ट वनीला एक्सट्रैक्ट में डालेंगे तो इनका जो ओडर है वो कैसा हो जाएगा? ओडर इनका डिसअपियर हो जाएगा. मीन कि अब इनका ओडर आपको नहीं सूंघने को मिलेगा, ये ओडर बिल्कुल चला जाएगा. तो ओडर विल डिसअपियर. ठीक है, ओडर नहीं रहेगा बेस के डालने पे. एसिड के डालने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ओडर पे, लेकिन बेस जैसे ही आप बेस डालोगे, अल्कलाइन सोल्यूशन डालोगे तो क्या होगा? इसका जो ओडर है वो नहीं रहेगा, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा. आप डिटेक्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड. आप क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी detected after adding the basic solution, or you can say alkaline solution of sodium hydroxide. Moving forward to the question number 18, but you do not forget to subscribe my channel. Part A, what happen when acid react with metal? देखिए,
मैं एक बेसिक आपको इक्वेशन लिख देती हूँ। हम यहाँ पर m से मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या होता है जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। तो बेटा ये भी मैं पहले बहुत बार समझा चुकी हूँ और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। तो एक तो आपको सॉल्ट मिलता है जो कि मेटालिक सॉल्ट भी बोल सकते हो, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन भी आपको देखने को मिलता है। गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको कोई भी एग्जांपल ले लेना है और उसकी केमिकल रिएक्शन लिख के बता देनी। तो मेटल की जगह पे आप जिंक ले सकते हैं, आप यहाँ पर सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं एज ओ विश। और ये सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ पर हम कोई भी एसिड ले लेते हैं, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेती हूँ विच इज इन दी डाइल्यूटेड फॉर्म एक्वस। फिर जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनाएंगे विच इज ऑल्सो अ सॉल्ट, और साथ में आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और इसको हमें बैलेंस कर लेना है। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ टॉक अबाउट द बी पार्ट। द बी पार्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट which gas is usually liberated when an acid react with the metal। तो देखिए आपने देखा that हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, अभी हमने ऊपर ही किया इसका पार्ट, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, राइट। विच गैस? हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ गैस? देखिए आप क्या करेंगे, जहां पर भी हाइड्रोजन गैस आपका निकल रहा होगा तो आप क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है तो हम देखते हैं कि बबल्स वहां पर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, व्हेन द बबल्स आर फॉर्म, व्हेन दीज गैस बबल्स आर पास थ्रू द सोप सोल्यूशन। अब हम इनको सोप सोल्यूशन से पास करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सोप सोल्यूशन के भी बबल्स बनते हैं, तो ये गैस उसमें फिल हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, हम बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे इन बबल्स के पास, ठीक है। बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे। देन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट गैस फिल्ड सोप बबल्स, and when we put near the burning candle or match stick, it stop burning। ये क्या होगा, बुझ जाएगी with the special sound, this is known as pop sound। this sound is known as pop sound when it stop burning because of this hydrogen gas। so this is a test for the evolution of the hydrogen gas। okay, so what is the test? you just bring a burning matchstick or a burning candle near the bubbles of the hydrogen gas, and that candle or the matchstick stop burning with a special pop sound। this is showing the presence of the hydrogen gas। let's move to the question number 19। while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid? okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि आप अगर आपके पास एसिड है, ठीक है, अगर आपके पास एसिड है तो आप क्या करेंगे, एसिड में वाटर ऐड करेंगे या डाइल्यूशन करने के लिए या वाटर में एसिड को ऐड करेंगे। देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम एसिड और वाटर को ऐड करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे लिबरेट हो रही है। तो क्या होता है कि हमें जनरली ये वाला जो स्टेप है जहां पर हम वाटर में एसिड को ऐड करें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये करेक्ट है। रीजन, क्योंकि ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस हीट को ये वाटर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो बहुत सारे अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या हो सकता है कि अगर आप एसिड में वाटर को ऐड करोगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ क्या होगा, ये आपका जो एसिड उछल कर आ सकता है। सो दिस हीट चेंजेस सम ऑफ वाटर टू स्टीम, ठीक है। ये क्या होगा, जो हीट है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा एंड एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन योर फेस एंड क्लोथ्स एंड कैन कॉज एसिड बर्न्स। सो दिस इज completely wrong and this is completely right that you need to be add acid in the water with the constant stirring and drop by drop you need to add, because this reaction is exothermic and will produce so much heat which can splash out the acid on your face, on your clothes। so this method is correctly incorrect। you need to be add acid in water drop by drop with the constant stirring। well, move forward to the question number 20। what happened when an acid react with the metal hydrogen carbonate? so metal hydrogen carbonate is also known as metal bicarbonate। write equation of the reaction which take place। देखो मैं एक यहाँ पर बेसिक रिएक्शन लिखकर दिखाऊंगी, फिर आप उस पर बेस कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेटल जब रिएक्ट करता है
सॉरी नॉट मेटल, जब आपका एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है, एक तो आपका यहाँ पर आपका सॉल्ट बनेगा विच इज मेटेलिक सॉल्ट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा और वाटर का प्रोडक्शन भी होगा। तो अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप कोई भी एसिड यहाँ ले सकते हैं, वो भी एक्वस फॉर्म में, और मेटल की जगह पे आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। मैं सोडियम ले लेती हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्योंकि सोडियम यहाँ मेटल है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होएगी और साथ में वाटर का प्रोडक्शन भी हमको देखने को मिलेगा। और इसको अगर हम बैलेंस करते तो देखिए सोडियम इज 1, सोडियम इज 1, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन आर 3, ऑक्सीजन आर 3, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस, वी डोंट नीड टू बी बैलेंस इट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, और ये हमारा आंसर भी कंप्लीट हो गया। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके आगे सॉलिड लिख सकते हैं, इसके आगे एक्वस लिख सकते हैं, इसके आगे गैस लिख सकते हैं, इसके आगे लिक्विड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये ऑलरेडी हमने 21 का ए यहाँ दे रखा है, जहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ऐड कर रहे हैं। नो, ये हमें बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं ये हमको, ठीक है, हाँ ए पार्ट हमारा हो चुका है। हाइड्रोक्लोरिक सोडियम कार्बोनेट के साथ करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करना। तो बेटा सेम रिएक्शन ही हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, दिस इज योर मेटल कार्बोनेट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका NaCl बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा और साथ में H2O भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन योर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम है तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो गए तो यहाँ पर ये 2 हो गए, वाटर ऑलरेडी, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी 2, ऑक्सीजन इज 3 एंड कार्बन इज 1। नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, और इसके जो सिंबल्स है वो भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्वस, देन दिस इज योर सॉलिड, दिस इज एक्वस, दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड। इसके बाद बोलते हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी ऑलरेडी रोट इट डाउन। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस, which gas is liberated when dilute hydrochloric acid react with sodium carbonate। तो यहाँ पर आप देख ही रहे साफ साफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर आएगा। आप चाहे तो पूरा नेम लिख सकते हैं, आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इट्स बेटर कि आप दोनों ही लिख दें। फिर बोला है हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, तो हम लिखेंगे पास कार्बन डाइऑक्साइड टू लाइम वाटर। आपको क्या करना है, ये गैस लाइम वाटर में पास करना है एंड दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर वो मिल्की हो गया सो दिस इज दी टेस्ट फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप एक्सिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो इट बिकम कलरलेस, राइट, इट बिकम कलरलेस। सो दिस इज द आंसर। Later moving forward to the question number 22. The question number 22 is what happens when an acid react with base। देखिए ये बोल रहे हैं क्या होता है जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है। तो हम सभी को पता है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिए अगर आप ये बेसिक रिएक्शंस को याद कर लोगे तो आप कोई भी एसिड लीजिए, कोई भी बेस लीजिए, आप आराम से रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन, तो हम लिखेंगे दैट सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। एक्सप्लेन व्हाई टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको एसिड के तौर पे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और बेस के तौर पे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो देखिए इसका मेटल इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और NaCl बन जाएगा विच इज अ सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। गिव इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस। तो कौन सी इक्वेशन हमने लिख लिया एंड व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ सच रिएक्शन। तो स्पेशल नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस के इफेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो सो सच रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 23rd नाउ, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अब ये दूसरा पूछ रहा है कि जब आपका एसिड
मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है बेटा, जनरली आपको मैं एक बात बता देती हूँ यहाँ पर कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो जनरली यहाँ पर भी आपका सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हमको देखने को मिलती है। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पे एसिड के लिए मैं HCl लेती हूँ और मेटल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं कॉपर ले लेती हूँ, कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे बनेगा कॉपर क्लोराइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। आप इनके स्टेट भी लिख सकते हैं। ओके, तो स्टेट लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भूल रहे हैं तो उसको लिख दें ताकि आपका जो नंबर कटिंग हो रहा है वो कहीं पर भी टीचर ना कर पाए, वरना छोटी छोटी बातों के लिए आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। Explain with the help of example. I already wrote it down the example here. Write a balanced equation for the reaction involved. आपको बैलेंस भी करना है। 2 chlorine and 2 hydrogen. Now it's become 2 hydrogen, 2 chlorine. Copper is 1, oxide is 1. Now it is already balanced. Moving forward to the question number 24. What are organic acids? तो बेटा organic acids क्या होते हैं? They are asking for this. बच्चे ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं, जो कि हमको प्लांट या फिर एनिमल से हमको मिलते हैं। ऐसे एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर मिनरल एसिड, जो कि हमको अर्थ डिगिंग के थ्रू जनरली मिलते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से हम लैब में जाकर उनको प्यूरिफाई करते हैं, डिस्टिल करते हैं, उसके बाद वो मिलते हैं। दे आर नोन एज द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। सो वी कैन डिफाइन देम, दोज एसिड्स व्हिच आर obtained from plant and animals, they are known as organic acids, right? और मिनरल एसिड्स के लिए हम क्या कहेंगे, मिनरल एसिड ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड एंड डिराइव फ्रॉम वन और मोर मिनरल ऑफ द अर्थ। कहाँ से मिलता है ये, मिनरल ऑफ द अर्थ, ठीक है। मिनरल एसिड वी गॉट इट फ्रॉम मिनरल ऑफ द अर्थ। नाउ गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल बोलूं, देयर आर सो मेनी एसिड्स। आप लिख सकते हो सिट्रिक एसिड, आप लिख सकते हो ऑक्सैलिक एसिड, आप लिख सकते हो फॉर्मिक एसिड, लेकिन 2 ही बोला है तो हम लोग यहाँ पे 2 ही एग्जांपल देते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और मिनरल एसिड के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही लिखते हैं। नाउ सी पार्ट, स्टेट सम ऑफ यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन द इंडस्ट्री। तो हमको कुछ यूजेस बताने हैं मिनरल एसिड के, तो चलो बताते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर मैं यूज बताऊं यहाँ पर, तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसका यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। और देखिए स्टमक में जो फूड डाइजेशन हो रहा है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो एक किंग ऑफ एसिड्स है, तो इसका यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं, और इसका यूज हम पेंट्स बनाने में भी करते हैं, डाइज बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे आप एक्सेट्रा लिख सकते हैं। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का यूज भी फर्टिलाइजर्स को बनाने में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइजर के अलावा एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, बॉम्ब पटाखे को हम लोग जनरली एक्सप्लोजिव कहते हैं। जहाँ पे माइनिंग का काम किया जाता है वहां पे एक्सप्लोजन किया जाता है। डाइज बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, और प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट into their ions while dissolving in water, तो अपने आयंस में कंप्लीटली जो हो जाए डिसोशिएट, हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक किसे कहते हैं, जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, पार्शियल डिसोशिएट होते हैं, उनको वीक एसिड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं, कंप्लीट एंड पार्शियली।
कंप्लीट माने पूरी तरीके से, पार्शियल माने पूरी तरीके से थोड़े बहुत, ठीक है। और कब? पानी में डिसॉल्व करने पर। उसके बाद क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन, उसमें चूज करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक, जनरली जो मिनरल एसिड होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग है कार्बोनिक को छोड़ के, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। फिर है एसिटिक एसिड, दिस इज वीक एसिड। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड, मिनरल है लेकिन ये वीक है। इसी तरह से जो सल्फोनिक एसिड है H2SO3, ये भी आपका वीक एसिड की कैटेगरी में ही आता है। तो जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं वो आपके वीक एसिड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई डू HCl, H2SO4, nitric acid, etc. show acidic character in aqueous solution, while solution of compound like glucose and alcohol do not show acidic character. देखो बच्चों, आपका जो HCl है और H2SO4 है और जो HNO3 है, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा ये H आयन प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस H आयन। तो RNAS के अकॉर्डिंग यही था, दो सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन, दे आर नोन एज द एसिड। अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें और एल्कोहल की बात करें, दिस इज इथेनॉल, तो बेटा इनके पास भी हाइड्रोजन है लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने पर ये H पॉजिटिव आयन नहीं प्रोड्यूस करते, so they are not known as the acid. So we can say because hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid produce H positive ions when they dissolve in the water or in the aqueous solution, so they are showing the acidic character, whereas glucose and ethanols are not producing the H ion while dissolving in water, so they are not show the acidic character. Let's move to the question number 27. What is neutralization reaction? तो बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? When acid react with base, it will form salt and water. So such reaction is known as the neutralization reaction. Now they are saying explain with an example. So एसिड के तौर पे हम HCl ले सकते हैं, बेस के तौर पे हम NaOH लेंगे, और ये आपका NaCl सॉल्ट बन गया और ये बन गया वाटर, right? Give the chemical equation of the reaction which take place. So we already wrote it down here. Now the question number 27 is also completed. Let's moving forward to the question number 28. Why curd and other sour food stuff like lemon juice not be kept in metal container like copper and brass? देखिए इसका आंसर बहुत ईजी है। जो कर्ड है या कोई भी साउड फूड स्टफ है, इसको हम लोग क्यों नहीं मेटल के कंटेनर में रखते हैं? तो आपने देखा मेटल रिएक्ट विद द एसिड, और ये जो कर्ड एंड फूड स्टफ है दे कंटेन एसिड which react with the metal container and form a toxic substance which is metallic salt, toxic substance which is poison, which makes our food poisonous and not good for health. That's why we not keep or kept the food stuff or food stuff in the metal container, otherwise आपको food poisoning हो जाएगा, right? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Now the question number 29, it has 3 parts. What is produced if an acid is added to a base? अगर आप एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे आप salt and water. फिर पूछा है why does dry HCl does not change the color of any litmus paper? Because they do not produce H positive ion. They do not produce H positive ion. देखिए HCl आपका एसिड है लेकिन ये ड्राई गैस है। ड्राई का मतलब नो वाटर, अगर वाटर नहीं है तो H आयन वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद सी पार्ट है, व्हाट कलर डज फिनोल्फथलीन इंडिकेटर टर्न व्हेन ऐड टू एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड? देखिए अगर एल्कली या बेस की बात करें तो फिनोल्फथलीन कलरलेस से पिंक हो जाता है, और एसिड के साथ कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ आंसर आएगा पिंक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विच इज on page number 67, 30. Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? Because they do not produce H ion. अभी मैंने इसके केस में बताया था,
तो यहाँ पर भी लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। बी पार्ट है व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या जरूरी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत जरूरी है आयंस का प्रेजेंट होना, ठीक है, क्योंकि ये जो आयंस होते हैं यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। अगर हम कोई भी एसिड है उसको एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब दैट एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, राइट, एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, whenever you are going to add acid in water they produce lot of H positive ion along with X negative, मतलब कोई ना कोई आपको यहाँ पर नेगेटिव एनायन भी मिलेगा, और because of this the presence of so many ions they are produced or they can conduct the electricity. Now C part is all about why does distilled water not conduct electricity, because they do not have any ion, distilled water they do not have any ion, ठीक है, so they cannot conduct electricity। सब कुछ आयन पे डिपेंड कर रहा है, अगर आयन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, so they do not conduct electricity। This is about distilled water। Literally they are asking why rain water does it, because जब पानी पड़ता है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो H2O के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उसमें सॉल्ट होते हैं, तो दे हैव लॉट ऑफ आयन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल so I can provide you more videos like this। Now I am going to do the long question which is on page number 68 and total questions are 3, 31, 32 and 33। चलिए let's do 31 has two parts A and B। A part is what happen when an acid react with the metal carbonate। क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये वाटर भी प्रोड्यूस करता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये अभी अभी हमने जस्ट किया था, तो हम यहाँ पे HCl एसिड ले लेते हैं, 2-3 अगर आप लोग एग्जांपल याद कर लेते हो वही आपको बार बार काम में आएंगे। तो यहाँ पे NaCl सॉल्ट बन गया, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा गैस और वाटर भी आएगा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। नाउ आई थिंक इट इज बैलेंस 2Na 2Cl 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। नाउ बी पार्ट, ये ए पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करिएगा। बी पार्ट व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे, देखो केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे बोला है तो ये भी लिख लेते हैं, लोग शॉर्ट टाइम में के लिए करते हैं तो बेटा वो मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की होता है? क्योंकि लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पार्ट 1 है। अगर इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे पास जो कि गैस है, तो ये फॉर्म करती है कैल्शियम कार्बोनेट, ये पीपीटी होता है आपका व्हाइट पीपीटी, जिसकी वजह से वो मिल्की मिल्की आपको नजर आता है और साथ में वाटर भी यहाँ पे बन रहा है, तो ये कैसा होएगा, ये मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पे लॉन्गर कंसिडरेबल टाइम के लिए करते हैं तो ऑलरेडी आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, वाटर भी है, अब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रोवाइड करवा देंगे और भी इसमें पास करा देंगे, तो यहाँ पे कैल्शियम बाय कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, विच इज कलरलेस। तो ये जो मिल्की है दिस बिकम कलरलेस। तो इसके साथ हम यहाँ पे स्टेट भी लिख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड दिस इज एक्वस। So this is happening here. Let's move forward to the question number 32. With the help of label diagram, describe an activity to show that acid produce ions only in aqueous solution. तो इस वाले क्वेश्चन में हमको लेबल डायग्राम बनाना है और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि जो एसिड्स हैं वो ओनली एक्वा सॉल्यूशन में, माने कि विद वाटर ही आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड HN प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमें विद एक्टिविटी शो करना है अलोंग विद द डायग्राम। तो दिस इज द एक्टिविटी।
what you need to do, you need to take a test tube, and in that test tube we need to take the sodium chloride, right, NaCl. आपको इस टेस्ट ट्यूब में NaCl लेना है. उसके बाद आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, वो भी कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेटेड मीन्स देयर इज नो वाटर. तो जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका एक गैस निकल रहा है. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, और फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो एक बैंड ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब है, अब इससे गैस निकल रहा है. तो आप जब पहले लिटमस पेपर लेंगे वो लेंगे ड्राई. आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप ड्राई लिटमस पेपर ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता. लेकिन जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं, माने कि गीला लिटमस पेपर लेते हैं, तो ये लिटमस पेपर ब्लू टू कैसा हो जाता है, रेड. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एसिड जो है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही लिटमस का टेस्ट दे रहा है. अगर यहाँ पर ये लिटमस पेपर ड्राई होता तो ये टेस्ट नहीं दे रहा होता. तो आपको ये डायग्राम बनाना है, प्रोसीजर में लिखना है. Take 1 gram of sodium chloride in a clean dry test tube. Add some concentrated sulfuric acid to it. A gas will be liberated and comes out through the delivery tube. तो यहाँ पे देखो गैस लिबरेट हो रहा है, and this is comes out from the delivery tube, right? And test the gas evolve with a dry strip of litmus paper. आप अगर इस गैस को dry strip of litmus paper से देखते हैं तो there is no change. But when the litmus paper is wet, this is going to be turned from blue to red. It shows only that ions only acid produce ions only in the presence of the aqueous solution, not in the dry medium. Okay, let's move to the question number 33. They are saying which element is common to all acid. कौन सा एलिमेंट सारे के सारे एसिड्स में कॉमन होता है, क्योंकि सारे के सारे एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका एलिमेंट पूछा गया है, तो योर आंसर विल बी हाइड्रोजन. बी पार्ट है इसका. Compounds such as alcohol and glucose contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity. तो आपको पूरा एक्टिविटी देना है कि जो अल्कोहल है और जो ग्लूकोज है, इनके पास देखिए, हम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं. इनके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये H आयन प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि इनके पास H है, तो ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करते और हम इसको एसिड की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते हैं. तो एक्टिविटी से प्रूव करना है. तो दिस इज द एक्टिविटी. यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक द सैंपल ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in different beakers, right? We have to take 3 beakers like this. In one beaker we have to take HCl, in one beaker we have to take alcohol, in one beaker we have to take glucose, and after that we need to observe that इस तरह का सेटअप लगाना है, कैथोड एनोड लगाना है, और हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 3 अलग अलग ले रखे हैं, उसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच करना है, बल्ब लगाना है. तो हम देखते हैं ग्लूकोज में जो बल्ब है वो लिट नहीं करता, अल्कोहल में भी बल्ब लिट नहीं करता, जलता नहीं, तबकि अगर HCl हम लेते हैं तो बल्ब जलने लगता है. वो इसीलिए जल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, जनरली H आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि आपका अल्कोहल और ये जो ग्लूकोज है इसका बल्ब लिट नहीं करेगा क्योंकि आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा. तो आपको इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution. बेटा आपका जो NaOH बेसिक है वो 10 ml ले रखा है और इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे जो कि 8 ml है, तो ये completely न्यूट्रलाइज होता है. अब बोलते हैं कि अगर हम NaOH 20 ml ले रहे हैं, the same solution of NaOH अगर हम 20 ml ले रहे हैं, the amount of HCl be same solution as before required to neutralize. तो कितना हमको HCl का अमाउंट चाहिए, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 ml होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, ठीक है, 20 हो रहा है. इस तरह से हमको 8 को भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 16 ml इसका आंसर आएगा. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन कॉज्ड बाय ओवर ईटिंग. जब हम लोग ओवर ईट कर लेते हैं तो हमारे स्टमक में जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है मैक्सिमम अमाउंट में, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होने लगती है. और एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें कोई ना कोई बेस खाना होता है. तो ऐसे मेडिसिन जो कि बेसिक होते हैं उनको एंट एसिड कहते हैं, एंटी एसिड मतलब
जो एसिड के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो क्या एंटीबायोटिक आएगा इसका आंसर? नो। एनाल्जेसिक आएगा? नो। इसका आंसर आएगा एंटासिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद द मार्बल चिप्स। व्हाट इज मार्बल चिप्स? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट। आपके मार्बल चिप्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन रिएक्ट विद द मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस। तो यहाँ पर ओके, टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। द सॉल्यूशन कंटेन, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ने मतलब मार्बल चिप्स ने किससे रिएक्शन किया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होगी? तो ऑब्वियसली एसिड से किया होगा, क्योंकि जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो सोडियम सल्फेट आपका ऑब्वियसली एसिड नहीं है, कैल्शियम सल्फेट भी एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, सो आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। 37 क्वेश्चन है, वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनिक एसिड। देखिए ऑर्गेनिक एसिड हमको जनरली प्लांट या एनिमल से मिलता है, और हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। इथेनॉइक एसिड हमारा जनरली एसिटिक एसिड होता है, जो विनेगर वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग और जो नीटल प्लांट स्टिंग होता है उसमें होता है। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है। कार्बोनिक एसिड आपका वीक एसिड है और साथ में ये मिनरल एसिड भी है। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एसिड की नहीं है? आउट ऑफ 4 ऑप्शन, दे हैव साउर टेस्ट, खट्टे होते हैं, यस होते हैं। दे फील सोपी, नो। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ये बेस का है, कि जो बेसिस होते जनरली सोपी होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर यही होने वाला है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ऐसा इंडिकेटर जो कि रेड कलर का हो जाता है एसिड में, तो ऑब्वियसली एक तो हमारा लिटमस है ही जो हम जानते हैं, राइट। उसके अलावा और क्या क्या हमारा यहाँ पर एक और ऑप्शन और क्या क्या हो सकता है? तो बेटा यहाँ पर टर्मरिक है, तो एसिड के साथ तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। फिनोफ्थलीन एसिड के साथ चेंज देखने को मिलता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लिटमस, यस। मिथाइल ऑरेंज, यस। मिथाइल ऑरेंज जनरली एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है, तो आंसर आएगा सी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 40, द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग। देखो अगर आपने काफी ज्यादा खाना खा लिया है और जिसकी वजह से आपके स्टमक में काफी ज्यादा क्या हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए आपको बेस लेना है कोई ना कोई। विनेगर तो एसिड है, एसिटिक एसिड होता है। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा आपका होता है NaSCO3, जो कि आपका बेसिक इन नेचर होता है, तो यहाँ पर आएगा आपका बेकिंग सोडा, राइट। और ये हमारा इनो वगैरह में भी हम लोग जनरली बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। कास्टिक सोडा हमारा NaOH है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस को हम एडिबल नहीं होता तो हम इसको खा नहीं सकते। 41, द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड। दोनों की प्रॉपर्टी में क्या सिमिलरिटी है? दोनों तो पहली बात, विनेगर में भी एसिड होता है, कर्ड में भी एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। दे हैव स्वीट टेस्ट, नो। दे हैव बिटर टेस्ट, नो। आर दे टेस्टलेस, नो। हैव साउर टेस्ट, यस, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में क्योंकि एसिड है। MCQ 42, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 42, द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन दी एल्कलाइन सोल्यूशन। ऐसा इंडिकेटर जो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है एल्कलाइन माने की बेसिक सोल्यूशन में। तो बेटा मिथाइल ऑरेंज तो नहीं करता, टर्मरिक भी नहीं करता, ये रेडिश ब्राउन करता है। फिनोफ्थलीन पिंक कलर को प्रोड्यूस करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43, अ सोल्यूशन रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल। कोई सोल्यूशन है जो कि जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो गैस निकलती है जो कि पॉप साउंड के साथ जब आप बर्निंग स्टिक लेके जाएंगे तो मैच स्टिक लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी, तो वो बेटा हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होएगी? जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होए, तो ये तो बेस है, नहीं करेगा। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ भी नहीं करेगा, सॉल्ट है। यहाँ पर भी नहीं करेगा क्योंकि सॉल्ट है। ये एसिड के साथ करेगा तो वो सोल्यूशन आएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जनरली जिंक जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को
प्रोड्यूस करता है, जो कि मैच स्टिक बर्निंग आप लेकर आओगे पास में तो वो बुझ जाती है विद अ पॉप साउंड। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हॉट्स के बारे में बात करें, अक्सर बच्चे इनको छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते, उनको बहुत टफ लगते हैं। जबकि अगर आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा करने में, और यही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन अ पीस ऑफ अ लाइमस्टोन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए लाइमस्टोन है क्या, लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। अब ये बोल रहे हैं व्हेन अ पीस ऑफ अ लाइमस्टोन रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बोल रहे हैं अ गैस इज प्रोड्यूस। तो देखिए जब भी मेटल कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर बनता है, राइट। तो ये बोल रहे गैस एक्स इज प्रोड्यूस। तो देखो यहाँ पर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक्स का आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। व्हेन गैस एक्स इज पास थ्रू लाइम वाटर, अब ये बोल रहे हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्स है उसको लाइम वाटर, दैट दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो व्हाइट पीपीटी बनता है। ये व्हाइट पीपी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अलॉन्ग विद दी वाटर, राइट। तो ये बाय इज फॉर्म, तो बाय क्या हो गया आपका, बाय हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम पहले भी कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। नाउ थर्ड वन इज ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ एक्स, एक्स क्या है CO2, अगर हम एक्स को ज्यादा पास करते हैं द व्हाइट पीपीटी डिजोल्व। तो देखो ये व्हाइट पीपीटी हमारा ये था, ये व्हाइट पीपीटी CaCO3 था, साथ में वाटर भी था। अब इसी सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डाल रहे हैं, तो क्या बनता है कैल्शियम बाय कार्बोनेट बनता है, जिसका कि क्लियर सोल्यूशन होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है, राइट। तो अब ये पूछ रहे हैं, तो ये हमारी तीनों की तीनों मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिख दी हैं, आप चाहे तो इनको बैलेंस भी कर सकते हैं, राइट। और वैसे तो हमसे मेनली यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए रिएक्शन बोलेंगे तो बैलेंस करिएगा, अदरवाइज आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आंसर आपको कर देने हैं। अब ये पूछे व्हाट इज एक्स, व्हाट इज जो सॉल्युबल कंपाउंड है वो जेड है, तो जेड आपका हो गया कैल्शियम बाय कार्बोनेट, दिस इज। अब पूछा व्हाट इज एक्स, तो एक्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहाँ पे लिखा ही हुआ है। व्हाट इज वाई, Y is obviously Y is your calcium carbonate, and what is Z? Z is calcium hydrogen carbonate, right? आप नाम भी लिख सकते हैं इसका। Write the equation for the reaction which take place when limestone, चलिए B पार्ट पूछा गया है, when limestone react with dilute hydrochloric acid, तो ये फर्स्ट का आंसर ये हो गया। When does X react with lime water to form a precipitate by, तो सेकंड का आंसर ये हो गया, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। आप चाहें तो इसके आगे ये भी लिख सकते हैं एक्वस, और इस तरह के आपको गैस भी लिख सकते हैं, आपको ये लिखना है स्टेट्स लिखने हैं इनके तो वो भी लिख सकते हैं। थर्ड है व्हेन एक्सेस ऑफ एक्स डिसॉल्व व्हाइट प्रेसिपिटेट वाई टू फॉर्म अ सॉल्युबल कंपाउंड Z, तो दिस इज योर थर्ड वाला आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स में भी पूछा गया है ये आपसे। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 45। If someone is suffering from the problem of acidity after overeating, बहुत ज्यादा आपने खाना खा लिया है तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होएगा। Which of following would you suggest to remedy, आप क्या सजेस्ट करोगे उस इंसान को कि आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि आपके स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेमन जूस खाना चाहिए? नॉट एट ऑल, क्योंकि लेमन जूस क्या है भाई, इसमें भी तो एसिड है, सिट्रिक एसिड। लोग क्या कहते हैं आप पानी में नींबू डाल के पी लीजिए, नहीं उससे इतना सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एसिड का ही ऐसे रिएक्शन करवा रहे हो। विनेगर नो, क्योंकि विनेगर में भी क्या होता है, विनेगर में भी आपका एसिड होता है, दिस इज एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑब्वियसली हम लोग यहाँ सजेस्ट करेंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, राइट। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से चूज करना है। After that we have question number 46 on adding dilute hydrochloric acid to a copper oxide powder। देखिए कॉपर ऑक्साइड का पाउडर है, इस पर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर रहे हो तो सोल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन।
तो यहाँ पर आपका कॉपर क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर भी बन रहा है। तो जो ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है ऑब्वियसली वो किसका होगा, आपका कॉपर क्लोराइड का। Predict the new compound formed when which impart the blue green color of the solution। तो आप लिखेंगे कॉपर क्लोराइड। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच इज टेकिंग प्लेस। तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर देते हैं। 2 लगा दिया, नाउ इट इज बैलेंस्ड। इसके आगे आप लिक्विड लिख लीजिए, इसके आगे आप एक्वस लिख दीजिए। देन सी पार्ट है, ये बी पार्ट है इसका, ठीक है। सी, on the basis of the above reaction what can you say that the nature of copper oxide। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो जब भी, और ये एसिड है, तो जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो हम कह सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है दिस इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। कैसा है, बेसिक इन नेचर, माने कि बेस की तरह वो बिहेव कर रहा है। Now moving forward to the question number 47। A white shirt has a yellow stain of curry। हम लोग देखिए कड़ी तो हम लोग खाते हैं, है ना। किसी को आलू की कड़ी पसंद है, किसी को पकौड़ी वाली कड़ी पसंद है। तो खाते खाते वो शर्ट पे गिर गई तो येलो कलर का कड़ी का दाग आ गया। When soap is rubbed on the shirt during washing, the yellow stain turn reddish brown। ठीक है, तो जो क्योंकि हमारी करी में टर्मरिक होता है, टर्मरिक की वजह से ही उसमें येलो कलर आ रहा है। अब वो शर्ट पे गिर गया और हमने उस पर सोप लगा दिया, क्योंकि सोप आपका बेस है और टर्मरिक आपके यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है और बेस की प्रेजेंस में वो हो जाता है रेडिश ब्राउन। यहाँ पर भी आपको रेडिश ब्राउन ही दे रखा है, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो गया। और रिंजिंग द शर्ट विद प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर हमने अपनी शर्ट को बहुत ज्यादा पानी से धोआ तो रेडिश ब्राउन स्टेन टर्न येलो अगेन, वो फिर से येलो हो गया, क्योंकि ये जो सोप था वो वाटर के साथ ड्रेन हो गया और ड्रेन होने की वजह से क्या हो गया, सोप चला गया। तो अब उसके बाद फिर से टर्मरिक का दाग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेम द नेचुरल इंडिकेटर प्रेजेंट इन करी, दिस इज टर्मरिक। हल्दी और चंदन के गुड़ निखारे समथिंग समथिंग। सो नाउ B1 explain the change in color of the indicator which take place during the washing and rinsing of shirt। तो आप यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे द येलो स्टेन इन द शर्ट व्हेन वॉश्ड विद सोप इट टर्न रेडिश ब्राउन। जब आपने साबुन से धोआ इट टर्न रेडिश ब्राउन बिकॉज सोप इज बेसिक इन कैरेक्टर एंड बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर it turn the turmeric which is a natural indicator yellow to reddish brown, and when react with base it turn yellow when rinsed with water due to the removal of soap, right। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। now see part, what is the nature of soap, acidic or basic, obviously soap are basic in nature, right। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दिस इज ऊपर चला गया, so sorry for this। well do not forget to subscribe my channel बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी जरूर करिएगा। तो अभी हम बात करते हैं, just wait let me see। okay, you have been provided with the 3 test tube। आपको 3 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर दे रखे हैं, right। वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेंट डिस्टिल वाटर, एक हमको नहीं पता किसमें डिस्टिल वाटर है, एक में डिस्टिल वाटर है, and the other 2 contain acidic and basic solution separately। if you are given only blue litmus paper, आपको blue litmus paper दे रखा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसमें क्या है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है इसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो व्हाट विल डू, विल dip the litmus paper one by one in all the 3 test tube, and the test tube in which blue litmus turn red, that is going to be acidic। ठीक है, आपको ये पूरा लिखना है। we are going to dip the blue litmus paper one by one all the 3 test tube, and the test tube in which the blue litmus paper turn red, this is acidic in solution। now the litmus paper turn red, now we are dipping that red litmus paper in rest of the 2 test tube, and in which red litmus paper turning blue, that is going to be basic base, okay, and the last one is the distilled water। this is your answer। question number 49, a substance X is used as an antacid, react with dilute hydrochloric acid।
कोई आपका सब्सटेंस एक्स है जो कि क्या होता है एंटासिड है, तो एंटासिड है तो मतलब ये क्या है कि वो बेसिक इन नेचर होगा। टू प्रोड्यूस अ गैस बाय, जो कि आपका बाय गैस प्रोड्यूस करता है। चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, क्या हो सकता है। विच इज यूज इन अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, तो आपको याद होगा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड अ गैस, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस। देखिए एंटासिड के तौर पे तो बेकिंग सोडा यूज होता है, राइट, तो हम यहाँ पे बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाते हैं NaSCO3, तो हमारा x क्या हो गया, x हो गया हमारा बेकिंग सोडा, दिस इज NaHCO3। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है, क्योंकि मेटल बाइकार्बोनेट है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो यहाँ पे गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको बैलेंस भी हम लोग यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं। तो ये सॉलिड है, तो सोडियम इज 1, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 3, राइट, तो दिस इज बैलेंस नाउ। तो यहाँ पर आपका एक्वस आएगा, यहाँ पे लिक्विड आएगा और यहाँ पे आपका गैस आएगा। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 50। How is neutralization reaction of carbonate with an acid different from neutralization reaction of ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो पूछ रहे हैं कि अगर हम कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो वो कैसे अलग है आपके अगर हम उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। देखिए बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट विद एन एसिड एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्साइड विद एन एसिड इज वेरी वेरी डिफरेंट। व्हाई, देखिए मेटल कार्बोनेट के साथ अगर आप काम करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो यहाँ पर आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर अगर आप मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड का, तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। माने कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है इन दी केस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल ऑक्साइड। तो देखिए अभी हमने बता दिया। अब इन्होंने बोला है कि हाउ इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट विद एन एसिड डिफरेंट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन ऑक्साइड। ओके, और हाइड्रोक्साइड की भी बात करेंगे, तो ऐसे ही हम यहाँ पर बता सकते हैं हाइड्रोक्साइड को लेकर भी, मेटल हाइड्रोक्साइड को लेकर भी हम यहाँ पर सर्च करके मेटल हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, राइट। तो यही सेम हमें मिलने वाला प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पर ये एग्जाम्पल के बारे में बात करते तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। तो यहाँ पे आप Na2CO3 ले सकते हैं, मेटल कार्बोनेट में HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप इसको चाहें तो जल्दी से बैलेंस भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3 प्लस 2HCl हो गया, ओके, 2NaCl हो गया, CO2H2, राइट। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ मेटल ऑक्साइड का। तो मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल के लिए आप लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कौन सा मेटल ले सकते हैं, आप लोग सोडियम ऑक्साइड मेटल ले सकते हैं, चाहे तो कॉपर ऑक्साइड भी आप लोग ले सकते थे। और यहाँ पे 2HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब HCl के साथ करवाएंगे तो देखो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और साथ में आप हाइड्रोक्साइड के साथ भी करवा के दिखा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हम कह सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। एज अ प्रोडक्ट फॉर द मेटल कार्बोनेट वी हैव द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द सॉल्ट, एज अ प्रोडक्ट फॉर द मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड वी हैव ओनली सॉल्ट एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द हॉट्स एंड टुडेज वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों कमेंट भी करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी अच्छी लगती है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट हैपेंड टू HIN A, the H ion and the temperature of the solution when acid is neutralized। H ion की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है जब सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होता है, और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए बच्चों, जब भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो जो H आयन जो होता है एसिड का, वो बेस के OH नेगेटिव आयन से मिलके वाटर बनाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो H पॉजिटिव आयन है वो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और आप कहेंगे दैट H पॉजिटिव रिएक्ट विद द OH नेगेटिव आयंस टू फॉर्म द वाटर। टेम्परेचर पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
because neutralization reaction is an exothermic reaction, so temperature will increase during the neutralization reaction. होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि मैं दूसरे वीडियोस में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी।